Coronavirus pandemic has been seen to affect health in many ways. It has been noted that heart health is being severely affected. In today's episode, we will know how to manage heart problems in times of corona pandemic. Let's go to Dr. Ripon Gupta live. Good evening, everyone. I'm Dr. Ripon Gupta, and I'll be talking on this corona pandemic and heart disease. I'm a cardiologist in Max Hospital. Basically, we have now gained a lot of knowledge about the corona pandemic because this virus has been with us for more than 9 months. It was discovered end of last year in China, and now we have been seeing a lot of the complications of corona in our patients. And heart patients also very unique perspective in the sense that the heart patients, they have a lot of emergencies. They have sudden chest pain and they have to be seen immediately by a cardiologist. Now in the corona pandemic, because of the fear of having catching the infection, patients are not coming forward and showing themselves to the doctor. So that is also causing problem. So I'll just tell you my experience in the last 6 months because we started admitting corona patients in March in Max Hospital, and then we separated our corona and non-corona wards and OPDs. And what is the patient's take on it, and what I feel is happening. So number one thing is that there is a lot of fear among the patients that if they go to a hospital, they will catch corona infection. I think that fear has to go away. Reason is that in Delhi, government has made sure that hospital has a COVID section and a non-COVID section. The section where COVID patients are kept, that place can only be approached by wearing a PP suit. So that is not open to anyone. Even doctors like me, if I have to go to that place, I have to wear a PP suit and go there. So those patients and attendants of those patients do not mingle with the other area. So there are two areas. One are the safe areas, that is known as green zone areas, and then there are COVID areas. COVID areas are totally isolated. Even we cannot go there. So I think going to a hospital, meeting a doctor, if you have some emergency symptoms, is very important. Again, emergencies again have been divided into COVID and non-COVID. So if a patient comes with a COVID-like symptom, he's immediately shifted to isolation ward, which is separate from the main emergency. So in heart patients, we should not delay the treatment. What I've seen in the last 6 months is that my patients are coming once they have a heart attack, they have chest pain. They're not coming in the first hour or 2 hours of the chest pain, which is the golden period. Because if you open the artery in that period, the damage to the heart is practically negligible. Most of the patients are coming after 6 hours, 12 hours, or one day. And when they come to us by that late, their heart is already damaged. And the number of patients who have died because of heart attack is at least 3 to 4 times higher than what it was in the pre-COVID area. Because pre-COVID, patient had chest pain, he will immediately rush to the hospital and will catch this patient very early. Now what is happening is that this patient is coming to us late. A lot of patients are dying even before they reach the hospital. So number one, heart is one organ where we cannot delay the treatment. And this phenomena has been seen not in India. If you see the data from US, Europe is same. That the heart attack patients are reaching late, more complications are happening, more deaths are happening. In fact, if we look at the worldwide data, till now we have around close to 1 million deaths. That is around 10 lakh deaths from corona pandemic. While in 1 year, we see 22 crores, that is 2 crore deaths because of COVID infection, heart attacks every year. So heart attacks kill 20 times more people than corona pandemic has killed till now, combined all over the world. So heart is a major problem. We should not delay the treatment, number one. Second is that if you have symptoms which are suggestive of heart pain, like you have a chest pain, uh, and this chest pain is never happened before, or you had a heart trouble before also and you are now experiencing the same symptom, आपको दोबारा भी chest pain लग रही है, सीने में दर्द हो रहा है या सांस फूल रहा है या कोई धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है. और अब हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसमें हम वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट इमरजेंसी में वीडियो कंसल्ट का फ़ायदा नहीं है. उस समय आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा. So you should not delay the treatment, number one. Hospitals and OPDs are totally safe, and all of us who go to OPD, there is a
good amount of social distancing maintained. So it is not like that OPDs are unsafe and you cannot go there. And regular follow-ups also very important. A lot of my patients, they will come to me with sugar being haywire, blood pressure being haywire, उनका सारा कोलेस्ट्रॉल खराब हुआ है, बीपी ठीक नहीं है, शुगर बढ़ गई है, एंड देन दीज पेशेंट विल कॉन्सिक्वेंटली हैव हार्ट ट्रबल इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज अगर ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी तो आगे जाके हार्ट ट्रबल होगी. सो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है कि अपने को ट्रीटमेंट डिले नहीं करना है. अगर आपको कोई भी शक पड़ता है कि हार्ट की दिक्कत है तो आप अपना ट्रीटमेंट उसको तुरंत जाके इमरजेंसी में ठीक कराइए, अपने आप को चेकअप कराइए, क्योंकि कोरोना की वजह से हार्ट की दिक्कतें नहीं रुकेंगी और बीमारियां नहीं रुकेंगी. इट्स नॉट लाइक कि इस समय सिर्फ एक ही बीमारी है दुनिया में जो कोरोना है और बाकी सब बीमारियां खत्म हो गई हैं, तो ऐसे नहीं होगा. तो वो उनका भी ट्रीटमेंट साथ में साथ अपने को चलना पड़ेगा. सेकेंडली, क्योंकि अभी तक इसकी इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं आई है, तो अभी अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन रखना है, मास्क पहनना है. मैं अभी घर आया हूँ तो मैंने मास्क उतारा, नहीं तो सुबह से अब तक 995 मास्क मैंने पहन के रखा हुआ था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, अब क्या हुआ कि 6 महीने से हम कोरोना कोरोना सुन रहे हैं, तो अभी हमारे मन में हो गया कि नहीं, इससे हमें वरी नहीं करना. बट इट हैज़ टू बी स्टिल टेकन केयर ऑफ. इवन नाउ अराउंड क्लोज टू 1000 पेशेंट्स आर डाइंग एवरी डे इन इंडिया बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक. तो इसकी अभी पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है. हमारे दिमाग में अब इसका जो टेंशन था या डर था वो थोड़ा सा कम हो गया, बट दैट डजंट मीन वी शुड नॉट टेक प्रिकॉशंस. तो हम अभी भी उस भीड़ भड़ाके वाली जगह पे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, वहाँ पे हमें अभी नहीं जाना है, अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी भी 6 महीना दूर है मिनिमम, और हम तक पहुँचने में शायद 1 साल भी लग सकता है. तो इसलिए हमें उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें कोविड इन्फेक्शन ना हो. अगर आपको हार्ट ट्रबल है या डायबिटीज़ है तो आपको कोविड इन्फेक्शन का खतरनाक रूप भी हो सकता है. सेकेंडली, हमने देखा है पिछले 6 महीने में कि कई पेशेंट जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ और कोविड इन्फेक्शन से वो ठीक होकर घर भी आ गए, उसके बाद उनके हार्ट के अंदर नए ब्लॉकेजेस डेवलप हो गए जो पहले नहीं थे. उनकी हार्ट की पंपिंग खराब हो गई, जिसको मायोकार्डिटिस कहते हैं. अब हमारे पास पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन सब ठीक हो गया, लेकिन अब नई हार्ट की दिक्कतें आ गई जो उनको कोविड इन्फेक्शन से पहले जब चेकअप कराया था उसमें नहीं थी. तो क्लियरली अब पेशेंट्स को एक तो कोविड से बच के रहना है, कोविड अगर हो जाए तो उसके बाद भी हार्ट के बारे में बहुत ध्यान रखना है, और अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं तो अपने आप को हार्ट का भी केयर प्रॉपर करना है. जो सिम्टम्स हार्ट के हैं वो कोविड से चेंज नहीं होंगे, और अपने को जो दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने हार्ट के लिए लिखी हुई हैं, उनको लगातार लेते रहना है. लोगों के अंदर बहुत ही एक फीलिंग हुई कि हम कोई भी दवाई लेंगे ये कोविड के लिए कोई ख़राब तो नहीं है. कई मुझे पेशेंट ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब जो हम हार्ट की दवाई ले रहे हैं इससे कोई कोविड की इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि शुरू में कंट्रोवर्सी हुई थी कि कुछ बीपी की दवाइयाँ ऐसी हैं जो कोविड इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. हर हार्ट की दवाई, बीपी की दवाई कोविड पेशेंट्स के लिए टोटली सेफ़ है. अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, अपना बीपी कंट्रोल में रखेंगे, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, तो अगर हमें गलती से कोरोना इन्फेक्शन हो भी गया, तो हमें कोरोना इन्फेक्शन से जो रिस्क होता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा और हम जल्दी से ठीक होके घर आ सकते हैं. तो ये सब चीज़ों का अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. लाइफ़स्टाइल में हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि कोविड के टाइम पे लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ख़राब हो गया. सोशलाइज़िंग बंद हो गई, तो लोगों का चलना-फिरना बंद हो गया. रेगुलर वॉक्स भी इनिशियली बंद हो गई थी जब सारे पार्क्स वगैरह मोदी जी ने बंद कर दिए थे, तो कई लोगों ने एक्सरसाइज ही छोड़ दी. अब उससे उससे क्या हुआ कि उनके सारे पैरामीटर्स खराब हो गए, ब्लड के पैरामीटर्स खराब हो गए, उनके हार्ट की ट्रबल बढ़ने के चांस बढ़ गए, और ये होम कुकिंग का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया. तो घर में बैठ के हम पूड़ियाँ तल रहे हैं और केक्स बना रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, जो कि हम सोच रहे हैं हम होम कुकिंग कर रहे हैं, बट अगर होम में हम जंक बनाएँगे, तो बाहर का जंक और होम का जंक सेम है, सेहत के लिए तो वो दोनों ही खराब है. ये पहली समर होगी जिसमें मैंने देखा कि मेरे पेशेंट जो हैं उनका शुगर खराब हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि समर्स में आदमी एक्टिविटी ज़्यादा करता है, तो उनके ब्लड के पैरामीटर्स बेटर रहते हैं, ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल रहता है. इस बार मुझे शुगर की भी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ रही हैं और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी बढ़ानी पड़ रही हैं. तो और इनका इम्पैक्ट हमें ये पड़ेगा कि अगले 6 महीने से लेके 8 महीने तक हमारे हार्ट के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएँगे. तो अभी सर्दी आ रही है, तो सर्दी में हार्ट अटैक्स का नंबर वैसे ही डबल और ट्रिपल हो जाता है. इस बार चूँकि इन सारे पेशेंट्स ने 6 महीने से वॉक नहीं किया, एक्सरसाइज़ नहीं की,
तो उनका हार्ट का अटैक का नंबर और भी बढ़ जाएगा। तो माय सजेशन इज़ दैट यू शुड डू 45 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी डे, ईट लेस ऑयली फूड, और जो घर में अपने होम कुकिंग मैं मना नहीं कर रहा कि आप अपना ट्राई करना चाहते हो करो, बट स्मॉल पोर्शंस लीजिए। जैसे अगर केक बनाया तो आपने 10-15 ग्राम का एक पीस ले लिया, ये नहीं कि आप पूरा केक बनाया हुआ है, 4 बंदों की फैमिली है, उसको ख़त्म करना है अपने एक दिन में, तो वो मत करिए, उससे आपके सेहत को नुकसान होगा। सो ये सब चीज़ों का लाइफ़स्टाइल अपना प्रॉपर फ़ॉलो करना है। मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसको रेगुलर लेते रहना है। अगर आपको कोई भी हार्ट के सस्पिशियस सिम्पटम लगते हैं, तो अपने को तुरंत इमरजेंसी में जाके दिखाना है। रेगुलर फ़ॉलो-अप करना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप डॉक्टर से दूर हैं और उतना ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करके भी दवाइयाँ एक्सटेंड करवा सकते हैं। ब्लड की रिपोर्ट्स वहीं लोकल करवा के उस रिपोर्ट्स उनको भेज के और दवाइयाँ एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब अलाउ की है कि आप वीडियो कंसल्ट करके अपना फ़ॉलो-अप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट इनिशियल सिम्पटम्स के लिए वीडियो कंसल्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको इमरजेंसी में जाके ही ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सिम्पटम्स हार्ट के होते हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं कि आपको जो सिम्पटम्स हार्ट के हैं, वो मिस नहीं करने हैं। जो हार्ट के सिम्पटम होते हैं, अगर सेंटर ऑफ द चेस्ट में कुछ हेवीनेस है, या आपको एसिडिटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो लाइफ में कभी पहले नहीं हुई, या आपको चलने पे साँस फूल रहा है जितना कि उतना चलने पे कभी पहले साँस नहीं फूला, या बहुत जल्दी थक जाते हैं आप, तो ये सारे सिम्पटम्स हार्ट के ही सिम्पटम्स हैं, और उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को मिलना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने अंदर से दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोरोना का जो एक स्ट्रेस होता है, वो निकाल देना है, बट कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस होती हैं, जो ध्यान रखना है, वो आपको फ़ॉलो करना है। तो उसको अपने को बंद नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें को आप ध्यान रखेंगे, तो आगे अपने को हार्ट ट्रबल होने के जो चांसेस हैं, वो बच जाएँगे, क्योंकि अभी अगले 6 महीने जो हैं, वो विंटर्स के हैं। उस विंटर्स में हार्ट ट्रबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर हम अभी भी अपना सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। अभी जैसे मैं ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ, तो मेरे आधे से ज़्यादा पेशेंट्स ने एक्सरसाइज़ बंद की हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। मैं उनको समझाता हूँ कि वॉक करने से कोरोना नहीं होता, और हमें कम से कम 15 मिनट का कॉन्टैक्ट चाहिए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहते हैं, तो हमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है। अगर हम वॉक कर रहे हैं और ऑपोज़िट साइड से कोई कोरोना का पेशेंट आ भी गया है, जिसको कोरोना पॉजिटिव है और हमें नहीं पता, तो अगर वो हमें आमने-सामने से हम निकल भी जाएँगे आस-पास से, तो वो द 5 सेकंड के कॉन्टैक्ट में हमें कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकती। तो ये चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपना एक्सरसाइज़ और अपना रेगुलर रूटीन ख़राब नहीं करना है। हाँ, अननेसेसरी सोशलाइज़िंग वो हम फ़ोन पे या वीडियो कंसल्ट पे या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट काम हम मना नहीं करते कि आप ना करिए, बट अपने को एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल और प्रॉपर मेडिकेशंस का बहुत ध्यान रखें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आई कैन टेक द क्वेश्चंस। आई थिंक सुधीर जी पूछ रहे हैं कि माय फादर हैज़ स्टमक पेन। तो ये तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुधीर जी, क्योंकि स्टमक पेन के तो कई कारण होते हैं। अम स्टमक पेन जो होता है, व्हाट आई डू, उनको चलने पे तो नहीं, वॉक वॉक करने पे अगर उनको कोई पेन होता है, तो उसको हम हार्ट का मानते हैं। वो स्टमक में भी, यहाँ पे भी हो सकता है एपिगैस्ट्रिक में। बट अगर उनको वैसे पेन हो रहा है तो मोस्ट लाइकली वो एसिडिटी का पेन होता है। तो एक आप घर के में कोई एंटासिड होगा, उसको ट्राई करके देखिए। अगर 1-2 दिन में नहीं आराम आएगा तो फिर हम एक गैस्ट्रो से बात कर लेंगे। तो अदरवाइज़ तो हमें वरी नहीं करना। बीना जी पूछ रही हैं कि शुड वी वियर अ मास्क एंड वॉक? बीना जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर तो आप कुछ ऐसी जगह पे वॉक करते हैं जहाँ इक्का-दुक्का लोग हैं, तो आप बिना मास्क के भी वॉक कर सकती हैं। बट अगर आपका जहाँ वॉक करती हैं वहाँ क्राउडेड एरिया है, और कोई ऐसी जगह से आप निकलती हैं जहाँ पे बहुत लोग होते हैं, तो देन इट्स बेटर टू वियर अ मास्क, बिकॉज़ अभी भी दिल्ली में आप अगर देखेंगे तो 2 ढाई हज़ार केस रोज़ के आ रहे हैं, और ये नंबर कम नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज़ कॉशियस। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने मास्क अभी 5 मिनट पहले उतारा है, और सुबह मैं घर से जब निकलता हूँ तो मास्क डाल के निकलता हूँ, और उसके बाद जब शाम को घर आता हूँ तभी मास्क उतारता हूँ। तो देयर इज़ नो हार्म इन वियरिंग अ मास्क। शिल्पा जी पूछ रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन कोरोना से अलग है, बट उनका कहना है कि कोई पीटीआईएनआर एक टेस्ट होता है जो ब्लड की थिनिंग चेक करता है, जिन पेशेंट के कोई वेल्व लगा होता है, आर्टिफिशियल वेल्व लगा होता है, उसके लिए कोई मशीन आती है,
तो उसके लिए एक मशीन आती है जिससे आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, रॉश करके कंपनी है, ROCHE, उसकी मशीन आती है और उसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट माने जाते हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट बार-बार लेबोरेटरी जाने से डरता है और पीटी आयना टेस्ट जिनके वेल्व डले होते हैं उसमें कराना ज़रूरी होता है। तो आप ये मशीन खरीद सकते हैं, इसकी स्ट्रिप्स आती हैं जैसे शुगर की, ग्लूकोज़ की स्ट्रिप्स होती हैं और उस स्ट्रिप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और वही रिपोर्ट जो आपको हमने सिखाई हुई है कि 2.5 टू 3.5 के बीच में आयना रहना चाहिए, वो उसको उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ROCHE, रोश कंपनी है ये, आई थिंक जर्मन कंपनी है, उनका ये आता है मशीन। मॉर्निंग वॉक बिना जी इस वेदर में एडवाइजेबल है। वो हम मना करते हैं जब पीक विंटर्स आएँगी। पीक विंटर हम कहते हैं 15 दिसंबर के बाद। तो अभी तक वो पीक विंटर नहीं है, तो अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए मना नहीं करते, और जब पीक विंटर भी होती है तब हम मॉर्निंग वॉक के लिए मना नहीं करते, अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए मना करते हैं कि आप 5 बजे 6 बजे मत जाइए, 7-8 बजे जब मौसम थोड़ा-सा बेटर होने लगता है तब जाइए। और जब भी हमें वॉक करनी है सर्दियों में, तो हार्ट पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि एडिक्वेट कपड़े डाल के जाना है। तो नॉर्मली पेशेंट का क्या होता है कि सर मैं वॉक करूँगा तो गर्मी लगेगी, फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक अपना जैसे कोई कपड़ा डालिए, ऊपर से एक शॉल ले लीजिए, और जैसे ही आप वॉक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, तो एक एक लेयर ऑफ क्लोथ आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी घर से बाहर निकलें, तो घर के अंदर बहुत टेम्परेचर कोज़ी सा होता है और बाहर बहुत ठंड होती है, तो एकदम एक्सपोज़र होगा जो गर्मी से ठंड ठंड में जाएँगे, तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए प्रॉपर कपड़े डाल के वॉक करिए। जब पीक विंटर होगी जो कि 15 दिसंबर के बाद आएगी और 15 फरवरी तक रहेगी, उसमें हमें अपना थोड़ा-सा लेट वॉक करने के जाना है। लेट मतलब साढ़े 7-8 बजे के करीब हम मॉर्निंग वॉक पे निकल के जा सकते हैं। बट अभी तक तो हम कभी भी जा सकते हैं। अभी जो जैसा अभी मौसम है, साढ़े 6, 5-6 बजे जितना मर्ज़ी बजे आप वॉक करना चाहें, मना नहीं है। मिस्टर जी पूछ रहे हैं कि उनका आरएफए हुआ था 1 साल पहले, तो कैन ही गो फॉर जॉगिंग? डेफ़िनेटली आपका आरएफए हुआ है तो आरएफए से इज़ अ क्यूरेटिव प्रोसीजर। आरएफ हम जब हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है तो उसमें हम एक कैथेटर डाल के हार्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा वायर होती है उसको बर्न कर देते हैं, और इसका जो इलाज होता है वो क्योर हो जाता है। पेशेंट उस प्रॉब्लम से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो आपका हार्ट एज़ गुड एज़ अ नॉर्मल पर्सन है, तो आप जॉगिंग करिए, वॉक करिए, आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। आप जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहें कर सकते हैं। ब्रिजभूषण जी पूछ रहे हैं उनके वाइफ़ हैं प्रोमिला जी, उनको चलने पे साँस फूलता है। तो देखिए ऐसा है कि उसके लिए इनका हार्ट फंक्शन थोड़ा कम है, मैं अगर केस रिमेंबर कर रहा हूँ, तो इनका हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम है, तो सर्दी जब आती है तो साँस फूलना बढ़ जाता है। तो आपको 2 काम करने हैं, एक तो लिक्विड इनटेक जो होता है, वो और कम कर देना है, क्योंकि आज से महीना पहले गर्मी थी, तो कुछ पसीने से भी पानी निकल जाता था। तो वीक हार्ट पेशेंट में सर्दियों में साँस फूलने की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसमें वो एक तो लिक्विड इनटेक कम कर दें, दूध, पानी, चाय सब मिला के पूरे 24 आवर्स में 1 सवा लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर उससे भी आराम नहीं आएगा तो फिर एक डाइटोर करके एक टैबलेट होती है, वो शायद हम लिखते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन में कि जब साँस फूले तो वो ले सकते हैं, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के। मतलब आपको या तो उनको ओपीडी में जाके मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन पे नहीं बताया जा सकता कि वेदर इट इज़ एडवाइजेबल और नॉट, बट आप पानी का इनटेक तो इमीडिएटली कम कर सकते हैं। ये सुमन जी पूछ रहे हैं कि उनका HbA1c 7.4 है, तो वो क्या करें? देखिए ऐसा है कि ये HbA1c जो चीज़ होती है, ये हम शुगर के 2 महीने का कंट्रोल देखते हैं। तो नॉर्मल आदमी में ये 5.6 से ज़्यादा नहीं होती, और 5.7 टू 6.4 हम प्री डायबिटिक कहते हैं, और 6.5 से ऊपर हम डायबिटिक कहते हैं। तो यूजुअली जब भी 6.5 से ऊपर होती है तो पहले हम कोशिश करते हैं दवाइयों से कंट्रोल कर लें शुगर को, बट अगर ये वैल्यू कंट्रोल में नहीं आई तो फिर हमें मेडिसिन्स लेनी पड़ जाती हैं। यूजुअल हमारा कट ऑफ रहता है कि अगर HbA1c 7 से ऊपर आ रहा है, तो हमें डाइट के साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका अगर 7.4 आ रहा है और आपने डाइट ट्राई कर ली है और कम नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको शायद दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डॉक्टर से मिलके एडजस्ट कराइएगा। तो ये पूनम जी पूछ रही हैं, माय हस्बैंड पल्स इज़ नॉर्मली अराउंड 50। 50 पल्स रेट तो नहीं अच्छी रहती, मतलब नॉर्मली वी वांट द पल्स रेट टू बी अराउंड 60। तो आप एक काम करिएगा कि अपने जो मेडिकेशंस की लिस्ट होगी, वो शेयर करिएगा मेरे साथ, तो फिर मैं बताऊँगा कि इनमें से कुछ कम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन हम हार्ट के लिए देते हैं जो पल्स रेट को लो कर देती हैं,
और अगर कोई कारण नहीं होगा फिर हम आगे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हमें 50 तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बट वी आर नॉट हैप्पी। तो 50 पे हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, अगर इस हार्ट रेट कम होने का कारण कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए आप मुझे मेडिसिन शेयर करेंगे, तो बाद में जब ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा कि हमें आके मुझे मिलना है या कुछ और करना है। नसीर जी पूछ रहे हैं कि उनकी मदर को पेसमेकर लगा हुआ है और अभी ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है। आई थिंक आपने नसीर जी मदर को ना मतलब पिछले आई थिंक 9-10 महीने से नहीं दिखाया, तो मैं अभी अपना जो टॉक दे रहा था वही कह रहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि घर में बैठे वही ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने लिखा था वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं। तो वो तब तक तो चलो फिर भी चल जाएगा अगर आपको सिम्टम नहीं है। जब जैसे अब उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मेरे से कांटेक्ट करिए, तो या तो उनको लाके मुझे दिखाइए, और अगर आप दूर रहते हैं तो वीडियो कंसल्ट करिए, तभी हम आगे कुछ टेस्ट करा के नतीजे पे पहुंचेंगे कि उनको ब्रीदिंग ट्रबल क्यों हो रही है। मे बी हमें एक ईसीजी कराना पड़ेगा, क्योंकि पेसमेकर चेक किए हुए भी 9-10 महीने हो गए होंगे, क्योंकि आप दिसंबर में मुझे मिले थे। तो आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनका लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, और फिर मैं आपको आगे का एडवाइस उसमें बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा, कोई टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, शायद मैंने अपनी लास्ट प्रिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा। तो ये महेश जी पूछ रहे हैं कि वो टेल्मा एलन BID ट्वाइस डे ले रहे हैं बीपी के लिए। आई एम टेकिंग लेस सॉल्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है कि हमारे में एक बड़ी गलत धारणा है, और ये सब लोगों के लिए अप्लाई होती है कि हम बीपी की दवाई बंद कर सकते हैं। देखिए बीपी ना उम्र के साथ बढ़ता है, तो अगर हम बीपी की दवाई ले रहे हैं और हमारा बीपी नॉर्मल आ रहा है तो वो दवाई की वजह से है, तो हम दवाई बंद नहीं कर सकते। हम बीपी की दवाई कम या बंद तभी करेंगे अगर हमारा बीपी नॉर्मल से कम आ जाए। तो नॉर्मल से कम हम तब कहते हैं अगर हमारा बीपी 110/70 से कम हो जाए। तो आपके केस में आप लाइफस्टाइल जो चेंज रखा हुआ है आपने, जैसे आप अपना नमक कम खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, और आपका बीपी सही चल रहा है, तो आपको दवाई कम नहीं करनी है। अगर हमारा बीपी बहुत कम हो जाएगा, जैसे 110/70 से नीचे चला जाएगा, और वो आपने घर में चेक किया कम आया, फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप लोकल डॉक्टर से भी चेक कराइए कि इतना है कि नहीं है, क्योंकि घर की मशीन उतनी एक्यूरेट नहीं होती। अगर वो भी कहेंगे हाँ बीपी तो बहुत कम हो गया है, फिर हम दवाई कम करेंगे। यूजुअली सर्दियों में बीपी बढ़ता है, तो सर्दियों में हमें बीपी की दवाई बढ़ानी पड़ती है। तो इस समय आई विल बी वेरी अनहैप्पी टू डिक्रीज द मेडिसिन, बिकॉज अगले 2-3 महीनों में बीपी की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो आप अभी दवाइयों, अगर आपका बीपी नॉर्मल चल रहा है तो दवाइयाँ एडजस्ट मत करिए। अगर बीपी आपका कम होगा तो फिर हम सोचेंगे, अभी नहीं हम सोचेंगे। ये बड़ा दुर्गेश जी पूछ रहे हैं कि उनको नींद नहीं आई क्योंकि ड्राई कफ था। तो ये तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे प्रिस्क्रिप्शन तो मैं बता दूंगा कि क्या करना है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आप कौन सी मेडिसिन पे हैं, वो उसके बाद ही बता सकेंगे। मिस्टर देवा पूछ रहे हैं कि हम अपना इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है, उसको कम होने के कई कारण होते हैं। एक कारण होता है कि नसों में ब्लॉकेज हो गया तब कम हो गया, कोई हार्ट अटैक पड़ गया तब कम हो गया, कई बार बिना किसी कारण के भी हो जाता है, उसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इसको पहले तो हमें इसका कारण जानना है। अगर तो ये ब्लॉकेज की वजह से है तो हमें ब्लॉकेज को हटा देना है। अगर हम ब्लॉकेज हटा चुके हैं या कोई पुराना हार्ट का डैमेज है और फिर हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास एक तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में हमें नमक कम खाना है, लिक्विड इनटेक कम रखना है जिससे कि हार्ट पे स्ट्रेन कम पड़े। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं उसे बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं उसे आर्नी कहते हैं। तो इन दवाइयों से भी हम हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके केस में स्पेसिफिक केस में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ लागू होती है, बट ये एक जनरल मेजर्स हैं कि लाइफस्टाइल चेंज और कुछ मेडिसिन हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। तो वसुम जी पूछ रहे हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन और हाई बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। हाँ, तो देखिए ऐसा है ना कि आपके केस में जो सोटोलार है उस जो मेडिसिन दी गई है उस एफib प्रॉब्लम के लिए, आपके जो धड़कन की प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब सोटोलार से भी स्ट्रॉन्ग एक दवाई आती है कॉर्ड्रॉन, बट आपके केस में इसलिए दी गई थी कि उसके साइड इफेक्ट्स थे। तो ये मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो ये क्या करेगी कि पूरा उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाएगी धड़कन को जितना कि दूसरी मेडिसिन कर पाती है।
बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर रेगुलर रहती है लेकिन फास्ट नहीं होती तो हमें टॉलरेट करना है, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ द डिज़ीज़ प्रोसेस। रमेश तिवारी जी पूछ रहे हैं वही बात जो मैं कह रहा था कि 6 महीने से उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया और वैसी की वैसी दवाई ले रहे हैं, तो वो नहीं करिए सर। आप क्या करिए कि अ, अगर आप हमारे पास नहीं आ पा रहे किसी भी कारण, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें व्हाट्सएप से हमारे से लिंक ले लें और एक वीडियो कंसल्ट करके एटलीस्ट टेस्ट जो करा के हमसे डिस्कस करके एक दवाइयाँ सही लाइन पे डालिए, क्योंकि जो दवाई हमने 6 महीने पहले लिखी थी, मे बी वो अभी इनके लिए ठीक नहीं है, उसकी डोज़ कुछ कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे वो दवाइयों की, तो हम आगे जाके दिक्कत में पड़ सकते हैं। स्पेशली कोई भी पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको हार्ट की दिक्कत है, उसके लिए सर्दियाँ बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। तो हमें उस मेडिसिन को एडजस्ट करवाना है। ऐसे नहीं चलने देना, बिकॉज़ फिर जिस दिन प्रॉब्लम एकदम आएगी तो फिर हम बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, वो नहीं करना। मैं तभी कह रहा था रेगुलर फ़ॉलो-अप ज़रूरी है। अ, नहीं, जो आप अशोक जी पूछ रहे हैं कि मेरी मदर 90 साल की हैं और डाइटर और रीपेस ले रही हैं 8 सालों से। देखिए, डाइटर और रीपेस बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन डाइटोर का डर क्या रहता है, कई बार वो बॉडी में सोडियम पोटेशियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और अब उनको डाइटोर की ज़रूरत है, कुछ उसको चेंज करना है, तो आई थिंक उसके लिए रिकंसल्टेशन ज़रूरी है। वी शुड नॉट डिले द कंसल्ट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि उनकी बॉडी कई बार मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से परेशानी में आ सकती है। सो ऑनलाइन कंसल्ट का लिंक जो है वो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, सब मेरे पेशेंट्स के पास मेरा मोबाइल रहता है, तो आप उसमें एक व्हाट्सएप डाल दीजिए कि प्लीज़ गिव योर ऑनलाइन कंसल्ट लिंक। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं हार्ट के रिलेटेड, अपने पेशेंट के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक अगर और क्वेश्चंस नहीं हैं तो आज के लिए हम क्लोज़ करते हैं, फिर हम दोबारा फिर मिलेंगे। लेकिन जो मेरा मैसेज है वो ध्यान रखिए कि सर्दी आ रही है, सर्दी हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हार्ट अटैक्स सर्दी में 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो सर्दी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपना दवाइयाँ पहले एडजस्ट करवा लें, ताकि सर्दी जो है आराम से निकल जाए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, खुदा ना ख़ास्ता कोई हार्ट की दिक्कत आ ही जाती है अचानक, तो हॉस्पिटल जाने से कतराइए नहीं, क्योंकि कोरोना का जो टेंशन है, कोरोना हो जाएगा, वो तो शायद ना हो, लेकिन हार्ट की दिक्कत से हम पक्का प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। और अपने को हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है और रेगुलर मेडिसिन्स लेते रहना है। थैंक यू।